जब आप मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आई वुड सजेस्ट यू टू mention this to your person who is taking your mock interview कि sir this particular part of mine is weak, I want you to grill me on this particular aspect. तो स्टार्ट वाला जो चीज होती है ना, कई बच्चे सोचते बहुत ज्यादा रहते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। Hi everyone, so welcome to IP Mat Roda. Today we have a very special guest with us. His name is I think Krishna, and he has converted IIM Kozhikode. He has converted other colleges as well, which we'll ask from him. So Krishna, welcome to the podcast, and we'll understand in detail कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, सारे फैक्टर्स हम कोशिश करेंगे आप आज कवर करें. So can you give us a brief intro about you, Krishna? So, first of all, thank you, sir, for inviting me for the podcast. I started my IPMAT preparation in 2025. I took a partial drop. I was also pursuing BBA from University of Lucknow. In my class 12th, I scored 75%. In my class 10th, I scored 90%. And as I mentioned, that I am from Varanasi. Okay. So, Krishna, were you a dropper or partial dropper? So, I am a partial dropper. Okay. So, how did you come to know about IP Mat? IP Mat के बारे में आपको कैसे पता चला कि इसके लिए तैयारी करनी है? And did you give IP Mat in your 12th class as well? साथ में 12th के साथ भी आपने IP Mat दिया था क्या? So I was randomly scrolling YouTube one day, and I basically YouTube Shorts I was scrolling, and I found about a reel about IPMAT exam as a whole, IPMAT Indore basically. Then when I started researching about it, and then I got to know about other various exams as well. That particular time was maybe it was April or March or April month of 2025 when I was in my class 12. In class 12 only I applied. I gave IPMAT, but since there wasn't much time left, so I couldn't clear the cutoffs for Indore as well as Rohtak. Then I decided to take a partial drop, and I took, as I mentioned, that I took admission in the University of Lucknow, and I was doing BBA simultaneously. I did the preparation with that. Okay. So, a lot of students are still facing this doubt कि drop लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, because you would also agree 12th के साथ अगर आप गाइडेंस नहीं ले रहे हो, शुरू से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो लास्ट में जैसे आपने कहा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इफ यू स्टार्ट इन अप्रैल और लाइक मे, दैट इज नॉट अ सफिशिएंट टाइम टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस, राइट? तो अगर सपोज 12th में हमें आइडिया नहीं रहा, या फिर वी डिडंट गेट सफिशिएंट टाइम, या हमें सही गाइडेंस नहीं मिली, कोई सा भी रीजन हो सकता है, एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट रीजन, तो हमें क्या सोच के ये डिसीजन लेना चाहिए कि ड्रॉप लेने में जैसे उसके अराउंड एक एंजाइटी रहती है कि ड्रॉप लेने से हम एक साल पीछे हो जाएंगे, या इवन पार्शियल ड्रॉप. सो व्हाट यू वुड सजेस्ट टू स्टूडेंट्स की जो इस डायलेमा को फेस कर रहे हैं कि ड्रॉप लें या फिर ना लें? Firstly, it's like for the drop thing. So at that particular moment when I gave the exam, I felt ki I should give time to this, and I can perform better. I had this inner feeling that okay, I can do better, I should give it a chance. So that's why I decided firstly to take a drop. Then when I explored the negatives of taking a full drop, then I decided to take a partial drop, because and I would even suggest my juniors to take partial drop over a full drop, because in a partial drop, when you're taking admission in some XYZ college, so at that particular moment you interact with a lot of people at least of your college, and then and this partial drop thing helps in the end time. Basically when you have that anxiety, okay, क्या मुझे this ये वाला college मिलेगा या ये वाला नहीं मिलेगा, then you have a backup which supports you, which gives you you get that relaxed feeling कि okay, I have a backup. अगर मेरा IPMAT में नहीं हुआ, then okay, at least मेरा 1 year complete हो जाएगा किसी particular college में, and मैं 1 year पीछे नहीं रहूँगा. तो this is the reason why I took a partial drop. एंड आई थिंक कि पार्शियल ड्रॉप के अभी ऑप्शंस भी बहुत सारे आ गए हैं. ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आपको ट्रैवल का इशू है, या आप जिस प्लेस पे हैं आपको लगता है कि मेरे को आईपीमैट की प्रिपरेशन वहीं से करनी है घर पे रह के, तो भी ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं, ऑफलाइन ऑप्शंस भी हैं. मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द ऑप्शंस, आप मल्टीपल वेज से आप पार्शियल ड्रॉप को परस्यू कर सकते हो. बट ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा कि एक सेफ्टी नेट और वो माइंडसेट में वो एंग्जाइटी या स्ट्रेस कम हो जाता है उससे, कि चलो एक फ्रीडम मिल जाता है कि चलो एक चांस लेते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं. बट डू यू एग्री कि पार्शियल ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो कॉलेज बहुत डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आईपीमैट का कोई सेंस ही नहीं बनेगा? डू यू एग्री विद दैट?
डेफिनेटली अगर आप जैसे पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो इट शुडंट बी लाइक कि आपने पार्शियल ड्रॉप बीटेक के लिए आप बीटेक करने लगे पार्शियल ड्रॉप में। इफ यू विल डू बीटेक तो डेफिनेटली इट इज डिमांडिंग एंड आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करेक्ट। पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट टू गो विद अ प्रोफेशनल कोर्स सच एज बीबीए। तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइक इन माय कॉलेज अगर इफ मैं लेट्स से एग्जाम्स के लेट्स से 3 to 4 days पहले अगर पढ़ लेता था तो इवन लाइक इन द 1 year I got a CGPA of 8.38 तो which is very much sufficient. I was preparing for this exam and I was लाइक आखिरी के कुछ दिनों में भी मैं पढ़ के अच्छा स्कोर कर पा रहा था। तो इट शुड बी लाइक दैट। एंड सेकंड थिंग कि अटेंडेंस क्राइटेरिया जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर पार्शियल ड्रॉप में आप। क्योंकि अगर लेट्स से आपका है कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है वो, तो वो क्या होता है कि देन इट बिकम्स डिमांडिंग ऑटोमेटिकली आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड अगर आप वो नहीं मेंटेन करेंगे देन फिर वो कॉलेज से इशू होता है। तो मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए आपके पार्शियल ड्रॉप वाले कॉलेज में। तो देन इट वुड बी अ फ्रूटफुल एंड अ हेल्पफुल थिंग फॉर द पार्शियल ड्रॉप। तो कृष्णा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी ले रहे हो तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू चेक द कॉलेज, वहां पर अकेडमिक लोड कैसा है? बिकॉज कई बच्चे गलती ये करते हैं कि अकेडमिक लोड इतना ज्यादा हो जाता है कॉलेज में कि वो बेसिकली उस कॉलेज में ही रह जाते हैं, फिर वो आईपी मैट के लिए जिसके लिए उन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया है रीजन, वो परस्यू नहीं कर पाते। तो इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? So, sir, I would say कि it is really important to check this particular aspect of the college because and the course also. Let's say if you're taking partial drop, तो it should be like कि आप कोर्स ऐसा ले रहे हो जैसे प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीबीए। तो उसमें क्या होता है कि एकेडमिक लोड आई मीन इन जनरल ऐसे बाकी कोर्सेज से कम होता है। आप लेट्स से आपने बीटेक ले लिया, बीटेक के साथ आपने पार्शियल ड्रॉप ले लिया तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल क्योंकि बीटेक का कोर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिगरस होता है एंड आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा उसके लिए अपनी अपनी प्रिपरेशन के लिए। एंड ऑल्सो द अटेंडेंस क्राइटेरिया ऑफ द कॉलेज ऑल्सो मैटर्स राइट। बिकॉज अगर लेट्स से आपके कॉलेज में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है एंड द कॉलेज इज लेट्स से कि फॉलोइंग इट तो फिर आपका काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा पहले तो प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड जब फिर लास्ट के फ्यू मंथ्स रहेंगे तो फिर वहां पे भी आपको 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा। देन फिर इश्यूज होंगे, आप आपके घर पे कॉल करेंगे एंड ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते तो आपको आई मीन चेक करना होगा अपने कॉलेज के बारे में कि एकेडमिक लोड नहीं है वहाँ पे। करेक्ट। सो दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट करे कि अटेंडेंस बिल्कुल देखो, एकेडमिक लोड को अच्छे से पहले देख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकेडमिक लोड बहुत ज्यादा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिर तो वो पार्शियल ड्रॉप की जगह आपका कॉलेज ही हो जाएगा बेसिकली। कॉलेज हो जाएगा। आईपी मैट आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। वन क्वेश्चन आई हैव इज लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग व्हेन यू कन्वर्टेड आई एम कोझिकोड? आई एम कोझिकोड इज इन माय ओपिनियन अ टॉप 5 कॉलेज फॉर श्योर। आप एनआरआई रैंकिंग्स में भी उसे देखते हो और काफी अच्छा कॉलेज है। तो कैसी फीलिंग थी वो, क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? I was actually when the results came out, I took a short nap and after that I woke up and I saw the messages on Reddit basically कि results are out. So while taking out the results, I felt after giving the interview, I felt कि first मेरिट लिस्ट में तो मेरा नहीं होगा, मेरी वेट लिस्ट होगी समथिंग। एंड आफ्टर आई ओपन द टैब्स एंड ऑल, when I found out congratulations, you have been selected and all, it was like feeling of rest. It wasn't like I felt that my world didn't change that much. I felt कि जैसा था पहले, now I mean things are like that. Yeah, I was a bit excited. I told my parents, I told my friends and family members, but it wasn't like very changing or something कि, oh there's a lot of thing. Okay, I felt completely normal after seeing the result, to be very honest. Okay, that's nice. One more thing I would like to ask you is what are the different converts you have, या कौन से कॉलेजेस से आपके पास कॉल्स हैं या किसी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, उसकी अपडेट बताओ एक बार। So firstly I got the interview calls from IIM Sambalpur, IIM Sirmaur, then Kozhikode and then Amritsar. Now I have converted Sambalpur. Amritsar I have not converted, and JIPMAT both their results are not out yet at this particular moment. So with the score that I have, I will convert Bodh Gaya and Jammu both. But I feel like I when I was exploring different programs, I felt that Kozhikode is what the BMS program is what I wanted, and I got what I wanted actually. मुझे ये बताओ कृष्णा कि जैसे आपने काफी सारे एग्जाम्स दिए होंगे,
पहले तो मुझे बताओ कि कौन से एग्जाम्स आपने दिए एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द मे बी द अप्रोच ऑफ द एग्जाम्स या द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जाम्स, इसके बारे में थोड़ा मुझे आइडिया दो. So, sir, I gave IPMAT Indore, IPMAT Rohtak. Then I gave this BMS aptitude test. Then I also gave GIPMAT, and yes. So these were Basically the all the exam. exams you have given, Yeah, all the main all four the ones, right? yeah, So all of them I what are the gave. differences you felt, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि इंदौर और कोझिकोड को फॉर एग्जांपल कंपेयर करना है. For the for Indore, you need a conceptual level of understanding. I mean, एक level basic understanding के ऊपर वाली understanding you need for Indore to solve the problems of Indore. And Indore में it's like कि you need to solve questions, but I mean you need to solve them correct and with the time limit. But Kozhikode के questions are very easy. So you have to look at the accuracy aspect, and as well the questions are very easy. And same goes with Rohtak. You have to attempt as many questions as you can, and you have to again focus on the accuracy part. For the GIPMAT thing, I would say that GIPMAT questions I personally felt that were a bit more on a, let's say, were on the moderate to hard side. But again, on the for GIPMAT also, you need to focus on the again accuracy and speed part. You सो need to attempt as बेसिकली many questions वी कैन as से you कि want. रोहतक हो गया, जिपमैट हो गया, कोझिकोड हो गया, थोड़ा स्पीड ओरिएंटेड है, मतलब लॉट ऑफ Mm-hmm. क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम. एंड इंदौर इज Yes. मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी Concept. वाला एग्जाम जिसमें आपको Hmm. हायर लेवल के क्वेश्चंस करना आना Questions. चाहिए टू बी Mm-hmm. कंफर्टेबल देयर, राइट? सो दैट Mm-hmm. वी कैन समराइज. सो कृष्णा, टेल मी अबाउट द योर कोझिकोड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी. मतलब क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप कोझिकोड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो? So if you are attempting BMS aptitude test paper, then for the VARC section, I believe that you should go for the maximum number of questions as much as you can, because questions are mostly doable. I mean, they are very easy. So you should focus on attempting the maximum number of questions, and most probably you will be attempting 45 questions, and the time will be up. And for the VARC, for the quant part, I would say that if you attempt like 25 or 30 questions, let's say 30 questions if you attempt, then it is more than enough for you to be in the first merit list. It is more than enough. बेसिकली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस भी क्यूए में करेंगे तो दैट इज आई थिंक Mhm. सफिशिएंट, है ना? 25 Yeah. क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स आर लाइक फेयर, आई गेस, है ना? Yes, sir. Also, now I would like to ask you about the mocks. तो आप, I think you were part of Rodha IPMAT mocks as well. तो Rodha IPMAT के mocks आपको कैसे लगे? क्या क्या आपने उससे सीखा? And you gave a lot of mocks as well. मैं देख रहा था जिपमैट के, कोझिकोड के. So I will give you the scores as well. उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा. बट पहले मुझे एक जनरल आइडिया बताओ कि how were the Rodha IPMAT mocks? For the Rodha IPMAT mocks, I personally feel like there are like two things which I want to highlight. First thing is the dashboard. I believe that the dashboard thing helped me really well, and also there was a leaderboard thing where you could see that where you are ranked basically, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपसे ऊपर कितने लोगों ने स्कोर किया और आपसे नीचे कितने लोगों ने स्कोर किया. तो it gave me a sort of boost that okay, in the next mock I have to put more efforts and I have to try. And the second thing is the video solutions. I believe that video solutions were the thing that were really helpful for me, because I am a kind of person जिसको video solutions देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. So I felt that the video solutions after each question, as a solution of each question, were really helpful for me. ओके, सो आई विल गिव यू सम मॉक्स के स्कोर्स एज वेल. तो अगर मैं कोझिकोड की बात करूं तो पहले मॉक में आई थिंक यू गॉट 171 आउट ऑफ 300, है ना? एंड देन फोर्थ मॉक में वो डिप भी हो गया था, जैसे 108 हो गया था 300 से. एंड देन फिफ्थ मॉक में 172 हो गया था. तो ये डिप हुआ था आपका स्कोर बीच में. जैसे इवन इन जिपमैट मॉक्स अगर मैं देखूं तो फर्स्ट मॉक में यू ओनली स्कोर 194, राइट? बट मॉक 5 एंड मॉक 10 में अगर मैं स्कोर्स देखूंगा तो 288 आउट ऑफ 400, विच इज लाइक अ वेरी गुड स्कोर, है ना? ठीक है. तो ये जो बीच बीच में डिप होता था या शुरू में स्कोर्स कम आते थे, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? क्या पैनिक किया आपने या फिर उसको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कैसे करा, उसके बारे में बताओ. सर बेसिकली आई बिलीव दैट टिप मेरे इस वजह से आया व्हेन आई फेल्ट कि okay, I got this much marks in a particular mock,
and when I felt कि okay, I need to jump, I need to, let's say, when I wanted to let's say I need a 30-40 marks ka jump in the mock score, and to grab that, we say na, to that greed, due to that grade, that Hmm. dip came. Then when after that, after the dip came, I felt ki, okay, I'm doing the things right, I might not be doing it with the right mindset. Then I analyzed my mistakes, and the mindset is, I think, really important while you are giving your mock. आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं करना है कि आप बहुत बड़ा जंप ले लो। लेट्स से अगर आप 150 स्कोर कर रहे हो, तो आपको एक ही मॉक में ऐसा एम नहीं कर लेना है कि आप 200 स्कोर कर लोगे। Correct. मॉक्स के स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हैं। So this is what I have for the mock, and again you have to analyze your mistake, and and again improve that. This is the only thing I would suggest. Krishna, I would like to ask you about the YouTube sessions. I think आपने वो भी काफी follow करा था. तो how was the sessions? Uh, some were taken by me, some were taken by VRC, were taken by Sharvari ma'am and Brijesh sir. उसके बारे में कुछ याद हो आपको कि हाँ ये बहुत अच्छा सेशन था, कुछ any instances you want to mention, or how was the quality? So for the YouTube sessions, sir, I believe कि जो last few days में some of the sessions were uploaded by ma'am, जिसमें वो EDMs revise करवा रही थी, and there were multiple questions. Those sessions basically helped me a lot. And sir, जो आपने marathon लिया था 3 hours का, and there were different marathons जो आपने लिए थे, तो वो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए दे वर वेरी हेल्पफुल। एंड देयर वर अ फ्यू थिंग्स जैसे कि जो मुझे नहीं पता थे, लेट्स से एक या दो टॉपिक ऐसे थे, तो देन उनको मैंने लेट्स से नोट डाउन किया, एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग देम लाइक ट्वाइस और थ्राइस, एंड देन दे हेल्प्ड मी इवेंचुअली। Okay. So Krishna, I will like to ask you about, you are also part of a GKPI course, है ना? तो GKPI course के बारे में बताओ कि how did it help you, या what were the features that you like, and then I will ask you about your Kozhikode का interview experience as well. But पहले course के बारे में बताओ कि what did you like in the course? Sir, because just after when I got the call, I started looking for the GKPI courses available, and I took Rodha's course. In that, when sir who the GK sessions were really helpful. It gave me different aspects, like of the different geopolitical events that were going on in the world, and various other events like the old wars, like the conflict between China and Taiwan, and various things such as related to these. I developed an understanding of all those issues in the GK part. In the personal interview part, I would say the mentors who took my interview were really helpful and were really experienced, I would say. And they helped me to clear my doubts, and they gave me specific advices related regarding my in response to my profile. So that personal experience which I got, or the personal feedback which I got, which was especially for me, helped me a lot. And specifically, I would say that Shashwat sir, who took my interview, like he took 3 mock interviews of mine, if I remember, and there were a few more teachers who helped me really much. कृष्णा, हम जैसे इंटरव्यू पीआई की प्रिपरेशन की जैसे बात करते हैं, तो उसमें वी टॉक अबाउट 3-4 मेजर थिंग्स. वन थिंग इज बेसिकली, और अकैड्स वाले जो आपके एक दो सब्जेक्ट्स जो फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली, वो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है. एंड देन वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो डोमिनेट कर जाता है. एक्सटेम्पोर की हम बात करते हैं, हम एचआर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट दीज 4-5 थिंग्स इन जनरल, राइट? सो मुझे ये बताओ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बैलेंस देम, राइट? और आप अपना भी एक्सपीरियंस बताओ कि समटाइम्स द इंटरव्यू गेट स्क्यूड एज वेल, कि एक ही चीज पे वो स्क्यू हो जाएगा, या किसी एक ही डिस्कशन को बहुत एलोंगेट कर लेते हैं. सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि चारों को अच्छे से बैलेंस करके हम पीआई की तैयारी करें? Sir, I would say कि after giving 2-3 interviews, I mean the real interviews, IIM interviews, I would say one line that interviews are highly unpredictable. You cannot predict कि आपसे किस करेक्ट. particular direction में questions पूछेंगे and आपको कैसे उनको आंसर करना है. आप सोच के कुछ और जाओगे कि आप हाँ ऐसा होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा मेरा flow of interview. But अब वो स्टार्ट होते ही आपको पता चल जाएगा कि ओके ये वैसा नहीं जा रहा है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था. तो आई करेक्ट. वुड से कि ऑल द 4 एस्पेक्ट्स आप, द फर्स्ट थिंग व्हिच आई वुड से कि अगर आपने आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी करनी है. करेक्ट.
तो जिससे कि आपको 5 to 10 days का एडवांटेज मिलेगा इस रिजल्ट आने के जस्ट बाद से ही आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, या फिर रिजल्ट जब आपको पता चल जाए कि हमने इतना स्कोर कर रहे हैं तब से ही स्टार्ट कर देनी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और आपको हर एक एस्पेक्ट जैसे कि HR क्वेश्चंस हैं, और लेट्स से स्ट्रेस इंटरव्यूज अगर हो रहे हैं या फिर एकेडमिक्स हैं, तो फिर उसमें आपको मतलब हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको करेक्ट। हर एस्पेक्ट में प्रिपेयर्ड होना है। एंड द थिंग इज, जब आप मॉक इंटरव्यूज दोगे तो आई वुड सजेस्ट यू टू mention this to your the person who is taking your mock interview कि sir, this particular part of mine is weak, I want you to grill me on this particular aspect, ताकि वो एस्पेक्ट आपका जो है कि वो स्ट्रांग हो जाए। एंड अगेन वो फिर इंटरव्यूज आप यू कैन नॉट से कि यही चीज पूछी जाएगी इंटरव्यू में। I think your interview were more of like GK oriented, right? General Yeah, questions yes were sir, asked more, right? तो yes उसके बारे yes में कुछ sir। एक्सपीरियंस बताना चाहोगे, like which are the questions? Just suggest 3-4 questions जो तुमसे पूछे, so that what we suggest is कि GK की प्रिपरेशन तो आप क्लासेस के साथ ही हम बैच में कराते हैं, like monthly या weekly, so that you are well prepared and last में इतना पैनिक ना हो। whichever interview you are going, आपके अकेड्स और जीके तो वी से कि आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। and if you can just answer those questions you will feel confident in the interview as well। okay, out of 5 questions I knew 3, तो एक वो एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है पूरा कि चलो आई एम एबल टू आंसर इट, है ना। तो इंटरव्यू इज मोर आल्सो अबाउट द कॉन्फिडेंस थिंग कि भाई हाँ आई एम एबल टू आंसर। तो कुछ इंस्टेंसेस बताओगे ऐसे कौन से क्वेश्चंस जीके के या जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? Sir, when I when my interview started for Koi Code, the first thing they asked me is like, how many members are in your family, and tell me about everyone. This is how they started the interview. And from here they as I had already mentioned, they asked me questions about geopolitics, business, like about different CEOs of different companies, let's say HUL and Tata, and there were many different companies. Like they asked me the CEOs of those companies, and then they for the they asked some geopolitical questions, such as let's say they asked me like what does India imports from Ukraine, and one very weird question which they asked to me like was uh, what is the meaning of the yellow color in the Ukraine's flag. So I mean I wasn't prepared for this, and also I had thought that they will ask me about my introduction first, but they skipped the introduction part completely. So करेक्ट। people should be prepared, like what if your interviewer skips the introduction part, so जो चीज़ें आपने introduction में आपने prepare की हैं, तो वो चीज़ों का आपको बीच में चिप इन करना होगा इंटरव्यू में, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी एडिशनली। Okay, Krishna, now I want to understand there's a myth about IPMAT ki IPMAT is equal to JEE or equivalent to JEE in terms of the preparation. We think कि IPMAT is not anywhere close to JEE। अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे भी कर रहे हो consistently for 6 to 8 months or even for 2 years अगर 11th class में हो, तो it is quite manageable। So what are your views on this idea कि IPMAT equal to JEE or not equal to JEE? And IPMAT in my opinion is quite manageable। आप 12th के साथ भी आराम से मैनेज कर सकते हो, given that you start early and you be consistent। थोड़ा आप करते रहो, so that over the time वो अच्छा एक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाता है ना। तो इसके बारे में एनी थॉट्स, एनी आइडियाज? Sir, I would say that IPMAT is definitely not equal to JEE, and I would say JEE का लेवल जो है पेपर का यहाँ है, तो IPMAT का लेवल वो काफ़ी नीचे है उसके। राइट। But IPMAT is what you is like a more comprehensive sort of exam, जो कि आपके इसके अदर स्किल्स पे भी फोकस करता है, आपके ओवरऑल ठीक ठाक प्रोफाइल पे भी फोकस करता है कि आप कैसा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, इन सारी चीज़ों में फोकस करता है। एंड अगेन आप लेट्स से क्लास 12th में अगर आप IPMAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, देन it's completely fine। आप थोड़ा टाइम दो, like 1 or 2 hours as you mentioned in a day, it would be really helpful। And if you are starting in class 11, so then also it's fine, but you have to stay consistent and give little bit of your time in that। It's not like you have to completely focus on doing like JEE, like you have to completely focus on करेक्ट। cracking JEE। सो कृष्णा, टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग टॉपिक्स इन डेप्थ, है ना। so, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बहुत शैलो तरीके से बेसिक्स कर लेते हैं बस, है ना, एंड दे विल बी एबल टू मैनेज ऑल द एग्जाम्स।
सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टडी इन डेप्थ, कि हर कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में समझो, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, फिर आपस में उनका इंटरप्ले भी करो. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन डेप्थ स्टडी अकॉर्डिंग टू यू? So I believe that in-depth study of topics is very important first of all because इंदौर अगर आपने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो आपका नहीं होगा. इट्स वेरी सिंपल क्योंकि इंदौर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने में तो वो नहीं हो पाएंगे सॉल्व. एंड if you have if you have time then definitely study in depth and do the practice questions and again revisit the topic after a few days because to revise them and again solve some more questions, and this process should be continuous to build a conceptual understanding of the topic which will eventually help you in the exam. अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी में भी पढ़ा है चीज़ें तो then it is not going to help you in the exam. आपको एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा एंड रिवाइज करेक्ट करना पड़ेगा basically. करेक्ट करेक्ट, वी डू एग्री दैट, है ना. अब मेरे को एक चीज ये भी बताओ कि बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि अभी स्टार्ट करें आईपी मैट के लिए, बाद में स्टार्ट करें. तो कब स्टार्ट करना चाहिए, राइट टाइम क्या है, या जब आपको लगे कि मेरे को करना है उस टाइम ही स्टार्ट कर देना चाहिए, या वी शुड डिले इट, या कीप ऑन थिंकिंग कि कैसे स्टार्ट करें. तो स्टार्ट वाला जो चीज होती है ना, कई बच्चे सोचते बहुत ज्यादा रहते हैं कि कब स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन. सो इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आपके? सर आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू इवेंचुअली. क्या होता है कि मैंने लाइक सोचते सोचते मैं जब मैंने आई टुक द पार्शियल ड्रॉप इवन आफ्टर टेकिंग पार्शियल ड्रॉप मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था. लाइक आई सीरियसली स्टार्टेड इन नवंबर और दिसंबर. तो ड्यू टू विच मेरा जिसकी वजह से मैं क्योंकि इंदौर के लिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज और डेप्थ चाहिए होता है वो मैं उतना अच्छे से नहीं बिल्ड कर पाया. तो इसीलिए आई वुड से कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सको करो. एंड अगेन समवन सेड इट कि द सेकंड बेस्ट the best time to start was 2 weeks ago and the second best time to start is today. So if you got whatever you have, अगर if you have much time left और जितना भी टाइम बचा आप अगर तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. आपको सोचना नहीं चाहिए कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इट इज गोइंग टू हेल्प. या एट द एंड ऑफ द डे इट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो एज yes, मिलती है आपको, टाइम मिलता है, रिवीजन का भी टाइम एक्स्ट्रा मिलता है. और yes sir. जो आपने पॉइंट बोला कि इंदौर के लिए तो बहुत जरूरी है, जैसे आपने अपने हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीज बताई, वी टोटली एग्री विद दैट, है ना, कि जरूरी है. बिकॉज नॉट एवरीवन इज दैट आईक्यू लेवल की बहुत जल्दी पिक करके 3 महीने में 4 महीने में कर सकते हो. मे बी वन स्टूडेंट कैन डू इट इन थाउजेंड्स और 10,000, बट नॉट फॉर एवरीवन, राइट. मुझे बताओ कि मैंने ऐसा देखा है इतने 8 साल 9 साल पढ़ाने के लिए आईपी मैट की जर्नी में कि वीआरसी को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं. क्यूए में तो पीपल आर लाइक दे आर डूइंग शीट्स, वो बुक्स भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, काफी एंथुसियास्टिक रहते हैं, इवन देयर इफ देयर क्यूएस भी. बट वीआरसी को उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं बच्चे, राइट. दे डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में फिर क्या होता है उनके साथ, उनकी वीआरसी की कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती इंदौर की, लॉट ऑफ देम. एंड देन दे रियलाइज इवेंचुअली कि अरे गलती हो गई, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी इस पे. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस कि वीआरसी को इग्नोर करने वाला जो एलिमेंट आ जाता है, इसके ऊपर क्या sir, थॉट्स है? sir the first thing same happened with me that मेरी ओके. बीआरसी की कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई थी. मेरी एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर की कट ऑफ दोनों ही क्लियर हो गई थी. इट इज बिकॉज कि बीआरसी में मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी एंड बीआरसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू विल प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई लर्नड एक्चुअली, that when you practice BA again and again that is going to help, first thing. And second thing is BARC के मार्क्स ज़्यादा हैं, उसका वेटेज ज़्यादा है. तो अगर आपका BARC ही अच्छा नहीं है तो फिर आपको क्वांट और MCQ आपको नहीं बचा पाएगा कट ऑफ क्लियर करने में, या फिर अगर आप इंदौर छोड़ दें तो किसी और के एग्जाम में नहीं बचा पाएगा. पर आपकी BARC की कट ऑफ, BARC आपने अच्छा स्कोर किया है और आपने लेट से एमसीक्यू और या फिर किसी एक सेक्शन का शॉर्ट आंसर का आपने कट ऑफ लेट से एक सेक्शन में आप नहीं क्लियर कर पाए हो तो डेफिनेटली आपको कॉल मिल जाएंगे रांची से, शिलोंग से, ये सारे एग्जाम से. और आपका वीआरसी ही नहीं हो पाया. जैसे मेरा खुद का वीआरसी का ही कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था, काफ़ी कम मार्क्स आए थे. तो क्या है कि इन कॉलेजेस से कॉल नहीं आएंगे आपको. आप फिर रांची भूल जाओ, आप शिलोंग भूल जाओ, और इंदौर से जितने भी कॉलेजेस मिलते हैं वो सारे आप भूल जाओ. ये दिस इज द थिंग. तो इट शुड बी वीआरसी इज व्हाट आई वुड से कि आई मीन सिंस उसका वेटेज ज्यादा है तो इट शुड बी फोकस. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट वीआरसी इज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट्स देन क्वांट्स.
वेटेज भी ज्यादा है, उसको क्वांट से एफर्ट्स भी कम चाहिए, बस आपको रिवाइज करते रहना है, तो डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन वीआरसी, नहीं ओके तो फिर मेरे जैसा सो हो जाएगा। दैट इज अ गुड पार्ट, लाइक काफी ऑनेस्टली आपने बताया कि आप भी जो मिस्टेक्स आपने करी, विच इज द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि बच्चों को वो चीज समझ में आए, एंड इवन इफ यू कैन गाइड सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे गेट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो ये अच्छी चीज रहेगी। लेट्स हैव अ रैपिड फायर नाउ। So I will ask you some questions, or whatever comes to your mind fast, and you have to answer fast, वो ध्यान रखना। So first question is quants or VRC? VRC। Okay, that's interesting. So next question is, follow-up question is, what is your favorite VRC topic? I would say para jumbles is my favorite VRC topic because it challenged me again and again, and I tried again and again, and I didn't, although I didn't succeed in IPMAT Indore, but in other exams, I attempted the parajumble questions and I solved all of them correctly. So yes, Okay, that's nice. I would like to describe your IPMAT journey in one word. it was full of ups and downs, I would say. Okay. I would like to ask you, Krishna, Rodha IPMAT in one word. Relevant. One hobby that you can do all the time. As I play keyboard, I would I would play keyboard all the time. Okay. So I also play keyboard. That's interesting. Oh. Late night studies or early morning studies? Late night studies, definitely. Okay. Mocks with solutions, video solutions, or without video solutions? Definitely mocks with video solutions. Drop or partial drop? Partial drop. So that was a very good fun with Krishna. I like कि कितना honestly आपने बताया। तो मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, कुछ एडवाइस दो IPMAT 27 या 28 एस्पिरेंट्स के लिए, based on your experience. Maybe you can give multiple advices that you should keep in mind, जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं कई बार। Some last tips or some advices. First is, I would say कि don't stick to just one college and fill all the forms. I would really say fill all the forms. It's not कि you're just giving importance to Indore and you're not giving importance to other colleges. Second is, I would say कि study in depth because it will be helpful for you. And I would say to suggest you all to maintain the balance between all the subjects. It's not कि just studying quant section only and you are missing the VRC part, or if you are giving other exams and you're not focusing on the LRDI part. And I would also say don't fear from mocks. It's I mean it happens all the time. You realize that okay, I'm not ready for the mocks, my syllabus is not complete and all. सिलेबस तो डेफिनेटली वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, मॉक्स देने चाहिए। इट हेल्प्स अस it helps us to revise, and it gives us a better picture of ourselves. And the last advice I would suggest is to stay consistent during the preparation. So very nice advices, I must say. I agree with all of them. I think मेरे को क्या अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में कि बहुत ऑनेस्टली आपने सारी चीजें बताई, एंड जहाँ आपने गलतियां करी वो भी आपने बताया, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी बताया, मॉक्स का एक्सपीरियंस भी बताया, तैयारी में भी आपने बताया कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू डिड, या क्या क्या चीजें आपने अच्छी करी। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड I think conversation. It will help a lot of students. So thank you, Krishna, for participating, and be in touch all the time. Thank you.